हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा 17 दिसंबर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gained today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos, not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also you will be provided a compiled video of the whole month both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors. Then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes, they are very helpful. And if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नए चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ की। अगर हम चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ की बात करते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ, जैसे हमें पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल MM नरवाने सर। फिर अगर मैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करूं तो वो भी देखेंगे, आर्मी स्टाफ कौन है, आपका एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ कौन है, वो सब देखेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि अभी हमने देखा था कि रिसेंटली बिपिन रावत सर का देहांत हो गया था एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। कहां पर? तमिलनाडु में। ठीक है, अब उनकी पोस्ट क्या थी? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो इंडिया के पहले CDS थे जिनको 2019 में अपॉइंट किया गया था, बिपिन रावत सर। उनका देहांत हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। कहां पर? तमिलनाडु में। अब उनकी पोस्ट जो कि थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसको किसको घोषित किया गया उनकी पोस्ट पर, या उनकी पोस्ट को अब किसको दिया गया है? वो है MM नरवाने सर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने सर, इनको अपॉइंट किया गया चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी का चेयरमैन। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है ना, इसी पोस्ट को हम क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, ये समझना, इसको अपग्रेड करके अब इस पोस्ट को क्या बोला जाता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत सर 2019 में। सेकंड अब कौन बन गए हैं? MM नरवाने सर। ठीक है, याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट। अगर अब हम देखें, हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो CDS होता है, इसके अंडर क्या आ जाता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ। अब देखो चीफ ऑफ नेवी स्टाफ बताओ मुझे सबसे पहले कौन है? नए बने हैं चीफ ऑफ नेवी के, इसके आगे मैं नेवी लिख देता हूं। चीफ ऑफ नेवी के नए कौन बने हैं? एडमिरल R हरि कुमार जी। और अगर मैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ बोलूं, एयरफोर्स के नए चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी। विवेक राम चौधरी जी आपके क्या है? नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और आर्मी स्टाफ कौन है? MM नरवाने सर। नए CDS कौन बन गए हैं? MM नरवाने सर। ये कौन से CDS रहेंगे? सेकंड CDS रहेंगे इंडिया के। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सेकंड चीफ ऑफ स्टाफ कौन है इंडिया के? MM नरवाने सर। यह अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट आई है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, MM नरवाने सर ये है सीनियर मोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ ऑल द 3 आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे IMF के द्वारा। IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का हेडक्वार्टर कहां पर होता है? वॉशिंगटन DC में। IMF के द्वारा रिसेंटली अभी एक डाटा रिलीज किया गया, एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि जो ग्लोबल पूरी दुनिया का कर्जा है ना, वो 226 ट्रिलियन डॉलर का है। मतलब पूरी दुनिया पर अभी जो कब्जा टोटल है दोस्तों, वो 226 ट्रिलियन डॉलर का वो है, कर्जा है किसी के ऊपर, इन कंट्रीज के ऊपर टोटल मिला के इतना कर्जा है। एक दूसरे से कर्जा ले लिया, इतने दूसरे से कर्जा ले लिया। ये इतना ज़्यादा कर्जा क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने देखा कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगी, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने की वजह से क्या हुआ कि सारी कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर बंद कर लिए। बॉर्डर बंद करा तो क्या हुआ, जो इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, उस पर बैन लग गया। और वो एक बार बैन लगा, उससे क्या होगा, सारा जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो बंद हो गई। उसकी वजह से एक दूसरे ने जो कर्जा ले रखा था वो बढ़ गया। अभी जो डाटा आया IMF का, इन्होंने बताया कि जो डेप्ट बढ़ा है ना, डेप्ट में सर्ज आया है, वो 2020 में सबसे ज़्यादा आया है, इवन ग्रेटर टू वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो डेप्ट बढ़ा था, जो कर्ज बढ़ा था, उससे भी ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है सिर्फ 2020 में। किस लिए? कोविड की वजह से। कोविड ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, आप ये समझिए, वर्ल्ड पर। ठीक है, ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? फिर से पूछो, किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हम बात करते हैं तो इनकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। फिर इनको इस्टेब्लिश 1944 में किया गया था और हेडक्वार्टर रहेगा वॉशिंगटन DC, हम देख ही चुके हैं। IF में टोटल ऑफ 190 मेंबर कंट्रीज हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, याद रहेगा। तो ये हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कीजिएगा। 16 दिसंबर को हम विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं। आप यहां देख रहे हैं कुछ आर्मी पर्सनल दिख रहे हैं। तो क्या होता है 16 दिसंबर? क्या होता है 16 दिसंबर को? अभी हमने देखा विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। ठीक है, इंडिया जीत गया। अब इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए 2021 में 16 दिसंबर को 16 दिसंबर को कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। तो 50 साल पे तो हमें पता है हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 50 साल की सेलिब्रेशन का, इंडिया की जीत पाकिस्तान के ऊपर सेलिब्रेट करने के लिए हम 2021 को 16 दिसंबर को, या हर साल 16 दिसंबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? विजय दिवस। इसको हम विजय
दिवस ऑब्जर्व करते हैं। इसके साथ साथ विजय दिवस के साथ साथ याद रखना है इसको, विजय दिवस भी और स्वर्णिम विजय दिवस भी बोला जाता है। ये तो हुई इंडिया की बात। इसको याद रखना, इंडिया जो 1971 की वॉर थी ना, इसको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या फिर आप इसको लिख सकते हैं लिबरेशन वॉर। 1971 की लिबरेशन वॉर जो हुई थी, 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश, हम तो विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं लेकिन बांग्लादेश ऑब्जर्व करता है बिजॉय दिवस, BIJOY, बिजॉय दिवस, क्योंकि उनको भी फॉर्मली इंडिपेंडेंस मिल गई थी पाकिस्तान से 16 दिसंबर को। तो ये 4-5 चीज याद रखना। क्या विजय दिवस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 16 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसको स्वर्णिम विजय दिवस भी बोला जाता है, ठीक है। और 16 दिसंबर को बांग्लादेश में क्या ऑब्जर्व किया जाता है? बिजॉय दिवस। ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, जिसको 1971 लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं, इसमें इंडिया की जीत हो गई थी और अब 50 साल हो गए हैं इसकी जीत को, और इसलिए हम ऑब्जर्व करते हैं अब स्वर्णिम दिवस। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट छोटा और इजी न्यूज़ याद रखनी है आपको कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है ना प्राइम मिनिस्टर की, इनके द्वारा अभी एक रिपोर्ट को रिलीज करा गया जिसका नाम रहेगा स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन इंडिया। इस रिपोर्ट का कहने का मतलब है कि बच्चे को ना फाउंडेशन स्टेज होती है जब छोटा होता है बच्चा, तभी से उसको हम स्किल प्रोवाइड करने लग जाएंगे, तभी से उसको राइट एजुकेशन देने लग जाएंगे, अच्छे विचार अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने लग जाएंगे, तो बड़ा होते होते उसका विकास अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये रिपोर्ट आई स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन इंडिया। इस रिपोर्ट को देखो, दो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए। एक तो होता है रिलीज किसने किया गया, ठीक है, और एक होता है प्रिपेयर किसने किया। ये दो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। रिलीज किसके द्वारा किया गया? अभी हमने देखा किसकी, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा, जो कि 2 PM। और इसको प्रिपेयर कौन करता है, आप मुझे ये बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी अभी रिपोर्ट रिलीज की गई थी, ये इसको प्रिपेयर किसके द्वारा करा गया? सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, बताइए किन के द्वारा ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया, रिलीज किया गया, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल 2 PM। सिंपल क्वेश्चन, छोटी सी न्यूज थी ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है काफी इंपॉर्टेंट, 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे इस न्यूज के बारे में। पहले हम बात करेंगे इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट की। किस समिट की बात कर रहे हैं, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट। अब कुछ वाटर की बात कर रहे हैं। अब आप ऊपर यहां पे देख रहे हैं सी गंगा लिखा हुआ है, नमामि गंगा इधर लिखा हुआ है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो एसोसिएटेड है सी गंगा के साथ, इन्होंने इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट को लॉन्च किया, 6ठे एडिशन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडिशन भी आजकल पूछने लग गए आपसे एग्जाम में कि सो एंड सो कौन से एडिशन में है, या कौन से एडिशन की ये समिट हुई, या कौन से एडिशन का ये इवेंट था। तो देखो 6ठा एडिशन रहा आपका वाटर इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट का, जो कि NMCGA एंड CG गंगा के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। 6ठा एडिशन इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट का 6ठा एडिशन था वो इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट का। किसके द्वारा कराया गया आपसे ये पूछा जाए तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा अलोंग विद सी गंगा। सी गंगा क्या है? सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसन मैनेजमेंट एंड स्टडीज के द्वारा मिलके इस ऑर्गेनाइज को इवेंट कराया गया। फिर पूछ लेंगे आपसे कि भाई अब मुझे थीम बता दो इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट की, किस थीम के बेसिस पे हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ साथ लिखते चलो, रिवर रिसोर्सेस एलोकेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एट द रीजनल लेवल। ये थीम रहेगी आपकी इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट की, जो 2021 में हुई थी, जिसका 6ठा एडिशन था। कराई गई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसन मैनेजमेंट एंड स्टडीज के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया।
क्यों कराए जाते हैं आपको, जैसे एक बहुत सिंपल सा रीजन कि भाई हमें अपनी गंगा को साफ करना है। ठीक है, उस गंगा को साफ कैसे करें, उससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या होना चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए। 5 दिन लंबा ये आपका इवेंट चला था जिसमें वेरियस मिनिस्टर्स ने, वेरियस एंटरप्रेन्योर्स ने जो गंगा को साफ करने के लिए सामने आना चाहते हैं एंड उसके बारे में जिन्होंने बात करी। नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें नाम आपको टाइटल दिख रहा है कि हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना अभी तक का सबसे बड़ी डील क्रैक की 2400 करोड़ रुपीस की, इन किसके साथ, बीईएल जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, फॉर एलसीए फाइटर्स। एलसीए क्या होता है आपका, एलसीए होता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, LAC फाइटर्स के लिए। और वो कौन से हैं, 83 तेजस, नाम रहेगा MK-1A। 83 तेजस MK-1A इन हेलीकॉप्टर्स के 20 टाइप के पार्ट बनाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया। हॉल ने किसके साथ किया, BEL के साथ किया। देखो हॉल ने करा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ करा, 2400 करोड़ रुपए इसके लिए करा। और ये क्या है, ये लार्जेस्ट डील है हॉल की। किस लिए करा, LAC एयरक्राफ्ट जिसको हम तेजस बोलते हैं, MK-1A, कितने, 83 तेजस के लिए किया। इनकी डिलीवरी तेजस की कब से शुरू हो जाएगी, 2023 से 2024 तक इसकी एक्सपेक्टेड डेट है कि हम डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। चीज़ याद हुई। फिर अगर हम हॉल की बात कर रहे हैं, हॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बता दीजिए मुझे। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन जी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा हॉल का, बेंगलुरु कर्नाटका में हेडक्वार्टर रहेगा आपका हॉल का। चीज याद हुई। चलिए नेक्स्ट पर आइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। इंडिया ने अभी होस्ट किया 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन डायलॉग। इंडियन ओशन डायलॉग अभी किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया, पहला तो सिंपल इजी क्वेश्चन यही बनता है, किसके द्वारा होस्ट किया गया, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। कौन सा एडिशन इंडिया ने होस्ट करा अभी आपका इंडियन ओशन डायलॉग का, तो इंडिया ने 8th एडिशन होस्ट किया इंडियन ओशन डायलॉग का। इंडियन ओशन डायलॉग का कौन सा एडिशन था, 8th एडिशन था। किसने होस्ट किया, होस्ट करा गया इंडिया के द्वारा। अगर मैं आपसे पूछूं किस काउंसिल ने इसको होस्ट किया, मतलब रिस्पॉन्सिबल काउंसिल क्या रहेंगे जिन्होंने इसको होस्ट किया, तो आपको बताना है कि किसकी असिस्टेंस से, इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स प्लस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। आई रिपीट, इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंडियन काउंसिल फॉर रिम एसोसिएशन, इन दो के द्वारा मिलके इंडियन ओशन डायलॉग को होस्ट कराया, ऑर्गेनाइज कराया गया। होस्टिंग कंट्री रहेगी इंडिया और इसका कौन सा एडिशन था, अभी 8th एडिशन था जो कि होस्ट कराया गया। फिर इसके बाद अगर कुछ इवेंट था, तो भाई इवेंट है तो थीम भी रही होगी ना इवेंट की, आपको थीम भी पता होनी चाहिए। पोस्ट पैंडेमिक इंडियन ओशन leveraging digital technologies for health, education, development and trade in IORA member states। अच्छा, कितने मेंबर स्टेट्स हैं इस IORA के, टोटल 23 मेंबर स्टेट्स हैं IORA के। IORA का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, हेडक्वार्टर रहेगा मॉरिशस। और IORA को इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1995 में इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, तो इंडियन ओशन डायलॉग, इसको क्यों, अब देखो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, पोस्ट पैंडेमिक इंडियन ओशन लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेड। तो क्या मतलब इसका कि इस एरिया में, इस रीजन में अलग अलग गवर्नमेंट के,
बिजनेसमैन, वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे इकट्ठे हों और इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए इन चार फील्ड्स में, चार फील्ड्स कौन सी होगी? हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेड। इसमें डेवलपमेंट हो, इसमें नई स्कीम्स आए, नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकें, इसलिए इस थीम को, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन ओशन डायलॉग 8वां एडिशन था, इंडिया ने होस्ट करा। इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड एसोसिएशन एंड वर्ल्ड अफेयर्स एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के द्वारा मिलकर ऑर्गेनाइज कराया गया। एंड जो ये होता है, इसमें 23 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो मेंबर स्टेट है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की। पहले बता दो कहां के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन? झारखंड के हैं। झारखंड में अगर आपको भी याद होगा, थोड़े टाइम पहले अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने सुना होगा कि झारखंड में ना बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया है। रीज़न क्या रहेगा वायलेंस बढ़ने का? कि वहाँ पे लोग क्या चाहते हैं कि जो पुअर स्टेट है, जो पुअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो, वहाँ पे वो लोग अपना राज चलाते रहे। इस वजह से क्या हो रहा है, झारखंड में वायलेंस बढ़ गया। झारखंड में क्या हुआ? वायलेंस बढ़ गया। अब वायलेंस बढ़ गया तो सरकार को वायलेंस कम करने के कुछ ना कुछ स्कीम लानी पड़ेंगी, कुछ इनिशिएटिव लाने पड़ेंगे, अपने एरिया में डेवलपमेंट दिखानी पड़ेगी। तो झारखंड ने क्या करा, अपनी एक स्कीम लॉन्च कर दी, सहाय। अब सहाय स्कीम क्या है? सिंपल चीज़, सिंपल टर्म में याद रखना है। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई झारखंड में, सिंपल टर्म्स में। अगर थोड़ा सा और डीप में जाके देखें तो सहाय की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जो कि होती है स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। ये थीम होती है आपकी, ये फुल फॉर्म है सहाय की, स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। सहाय लॉन्च की गई झारखंड के द्वारा वायलेंस को कम करने के लिए और स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए टू द यूथ ऑफ झारखंड, जो कि 16 से 19 साल के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी कि आप आइए और यहाँ पे वेरियस 16 से 19 नहीं, 14 से 19 साल के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। किस लिए था? जो कि आपने बताया ना, मैंने वहाँ पे वायलेंस बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था वायलेंस? और जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज़म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म कहते हैं जिनको, इन्होंने क्या कहा, वायलेंस बढ़ा दिया था ताकि लोग उनकी बात ना शुरू करते तो वो वायलेंट हो जाते, लोग डर के रहेंगे, अपना डर बढ़ा गया था। तो उसको कम करने के लिए, ज़्यादा बच्चे वायलेंस की तरफ शिफ्ट ना हो या ज़्यादा वायलेंस का शिकार ना हो, झारखंड की सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया। सहाय काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो, अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो कैपिटल क्या रहेगी? रांची। चीफ मिनिस्टर कौन थे? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? रमेश बाइस जी। और अगर हम कुछ नेशनल पार्क की बात करें झारखंड के, तो वो है हजारीबाग नेशनल पार्क एंड योर बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। ये दो नेशनल पार्क भी याद रखिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला, उस मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिसने एक एमओयू साइन किया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ फॉर एफिशिएंट फाइनेंशियल डाटा एक्सचेंज। जो फाइनेंशियल डाटा होता है उसको एक्सचेंज करने के लिए किस कंट्री ने, किस मिनिस्ट्री ने इंडिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करा? तो वो रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की अगर हम बात करें, 2004 में बनी थी। डायरेक्टर रहेंगे पंकज कुमार मिश्रा जी और हेडक्वार्टर रहेगा आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा गलत। पहला ऑप्शन देखते हैं, इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट रुपे डेबिट कार्ड्स एंड भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन विद एन एस्टिमेटेड फाइनेंशियल आउटले ऑफ 1300 करोड़ रुपए फॉर 1 ईयर। तो हाँ, डाटा बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरे में पीएलआई स्कीम विद एन आउटले ऑफ 76,000 करोड़ रुपीज टू बूस्ट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो इंसेंटिवाइज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फॉर अप टू 2.3 लाख करोड़ रुपीज। ऑप्शन 2 भी ठीक दे रखा है। सी ऑप्शन पे आइए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम किसान मनधन योजना
for 21 to 24 with an outlay of 93,068 करोड़ रुपीस फॉर 22 लाख फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा ये डाटा 2021 से 2024 के लिए नहीं था। क्या मुझे बता सकते हैं ये कब से कब तक था? ये डाटा आपका 2021 से लेके 2026 तक का डाटा था जो कि इफेक्ट में आया था। ठीक है, याद रहेगा। तो अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत हो गया आपका? ऑप्शन सी आपका रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन 1 एंड 2, मतलब ए एंड बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया द ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स बिटवीन इंडिया एंड डैश कंट्री। क्या कह रहा है कि कैबिनेट ने अभी एक ट्रीटी साइन की है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, मतलब लीगली असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी क्रिमिनल मैटर्स में। क्रिमिनल मैटर्स में लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। इंडिया ने ये टाई अप किस कंट्री के साथ किया ये बताना आपको। तो ये किसके साथ टाई अप किया? पोलैंड के साथ टाई अप किया है। इंडिया एंड पोलैंड अपना लीगल असिस्टेंस शेयर करेगा इन क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। किस कंट्री ने अभी एक LOI सेंड किया? LOI क्या होता है? लेटर ऑफ इंटेंट, इंडिया के साथ टू एनेबल पार्टनरशिप इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में पार्टनरशिप बढ़ाया इंडिया ने किस कंट्री के साथ? एक LOI साइन करके लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया डिजिटल मीडिया की फील्ड में, मतलब डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने किसके साथ ये टाई अप किया? बताइए ज़रा। वियतनाम के साथ टाई अप किया। आपको याद रखना है, एक अभी रिसेंटली डाटा आया था क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स का डाटा आया था जिसमें टॉप किसने किया था? सबसे ज़्यादा अडॉप्शन क्रिप्टो का कहाँ पे हुआ? क्रिप्टो करेंसी का वियतनाम में, एंड सेकंड टाइम पे रहा था इंडिया। तो याद रखना, सिमिलरली तो डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम और इंडिया के बीच में एक LOI साइन किया गया, लेटर ऑफ इंटेंट। नेक्स्ट, किस कंपनी या विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म टू टोकनाइज ऑनलाइन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, जिसको बोला गया सेफ कार्ड ऑन वीजा, मास्टरपे एंड रूपे कार्ड्स नेटवर्क? सिंपल क्वेश्चन, वो कौन सी कंपनी बनी जिन्होंने पहली पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिन्होंने टोकनाइज कर दिया अपने ऑनलाइन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड को, जिसको सेफ कार्ड बोला गया विद वीजा, मास्टर कार्ड एंड रूपे कार्ड नेटवर्क पर? बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 5 से 10 सेकंड आपको मिलेंगे, बताइए किसने साइन किया ये? कौन बनी वो पहली पेमेंट प्लेटफॉर्म? वो बनी फोन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर मैं फोन पे की बात करूं, फोन पे ने लॉन्च किया फोन पे सेफ कार्ड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सेफ कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिन्होंने टोकनाइज कर दिया सॉल्यूशन फॉर ऑनलाइन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। और ये सपोर्ट करेंगे जो मेजर कार्ड नेटवर्क्स होते हैं जैसे रुपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, इन सबको ये सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आपको बताना है उस बैंक का नाम जिसने अभी रिन्यू कर दिया अपना MOU इंडियन आर्मी के साथ, जो कि ऑफर करेगा कई सारे बेनिफिट्स टू आर्मी पर्सनल्स एंड देयर फैमिली थ्रू डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम। इन्होंने क्या अपडेट किया? जैसे आपको कोई परमानेंट डैमेज हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई टेम्परेरी इंजरी हो जाती है, उसका बेनिफिट आपको, जो मेडिकल होगा उसका बेनिफिट मिलेगा आपके, अगर घर में बच्चे हैं उसकी शादी करानी है, कोई लड़की है और उसके फादर की डेथ हो गई है ड्यू टू आर्मी, और वो उनके फादर आर्मी में थे, उनकी डेथ हो गई है, तो उसकी लड़की की शादी कराने का भी पूरा जिम्मा किन का होगा? अब इस बैंक का होगा अंडर दिस स्कीम। तो उस बैंक का नाम बताइए जिन्होंने अपना एक MOU साइन किया विद इंडियन आर्मी टू ऑफर बेनिफिट्स टू आर्मी पर्सनल्स एंड देयर फैमिली थ्रू डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम। उस बैंक का नाम बताना है आपको। तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी ऐप प्रोवाइड करेंगे। जैसे अंडर दिस स्कीम SBI ऑफर कर रहे हैं एनहेंस कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर करेंगे, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपका परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी कवर, कोई आपको डिसेबिलिटी, आपको कोई दिक्कत हो जाती है उसका कवर मिलेगा आपको। इवन अगर आपकी एजुकेशन एज वेल एज मैरिज ऑफ गर्ल चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज्ड आर्मी पर्सनल, ये भी प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा।
नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट कि उस पद्मा अवॉर्डी व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ऑथर है तेलुगु बुक गांधी टोपी गवर्नर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट, गांधी टोपी गवर्नर ये एक बुक है, तेलुगु बुक है, जिसके ऑथर कौन रहेंगे और वो एक पद्मा अवॉर्डी हैं। उनको कौन रहेंगे पहले तो ये बता दो, वो है यार लागड़ा लक्ष्मी प्रसाद जी। ठीक है, इनकी बुक है गांधी टोपी गवर्नर, ये एक तेलुगु की बुक है। ठीक है, तेलुगु बुक है। इसको रिलीज किन के द्वारा किया गया था? वेंकैया नायडू सर के द्वारा इस बुक को रिलीज करा गया था, तो याद रखना ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थे आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब मैं आपसे कुछ होमवर्क, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे होमवर्क के लिए, ये आपके स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। देखो फ्रेंड्स, हम आपके लिए डेली इतनी हेल्प करते हैं तो आपका उसको पढ़ना चाहिए, आपको उसको चेरिश करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ तो ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा अगर आपको प्रिपरेशन अपनी अच्छी करनी है। आपको इसके जो सारे आंसर है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो आपको एक दिन के बाद इसका आंसर मिल जाया करेगा, लेकिन एक दिन तक आपको इसका आंसर पहले से खुद से ढूंढ के रखना है और नीचे कमेंट करना है। अगर हमें कमेंट का रेशियो अच्छा मिलेगा तभी हम ये समझिए आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फर्स्ट एशियन टू विन मिस वर्ल्ड टाइटल? सेकेंड, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया के कौन आर्किटेक्ट रहेंगे? अटल पेंशन, तीसरा क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च की गई थी टू क्रिएट यूनिवर्सल सोसाइटी सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल इंडियंस। हाउ मेनी पेंशन स्लैब्स आर देयर इन अटल पेंशन योजना? तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि कितने स्लैब है अटल पेंशन योजना में। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी कंट्री विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस गोल्डन राइस? गोल्डन राइस की एक वेराइटी है राइस की जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, किस कंट्री ने अप्रूव किया? दे आर पहला कमर्शियल प्रोडक्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किन के द्वारा डेवलपमेंट एज फ्रीडम इस बुक को ऑथर करा गया है, ये बताइए। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, करके ज़रूर कमेंट करिएगा नीचे। और देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई बार सर जैसे आंसू सर बिजी हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका कंटेंट क्लियर होगा, आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आपका मेन फोकस रहना चाहिए पढ़ाई पर। अब मैं देखता हूँ कि बच्चे पूछते रहते हैं आशु सर नहीं है, आशु सर नहीं है। आपको जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है प्लीज़ कंटेंट पे फोकस कीजिए, आपको वो ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको जैसे कई बार हमसे वीडियो डिले हो जाता है तो आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको डेली अपने वन लाइनर्स बना के चलने हैं। जब मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो साथ में अपने नोट्स बनाइए। तो जब आपकी वीडियो डिले हो गई, मान लो एक दिन नहीं आई है, तो आपको काम ये होता है, आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आप अपने पुराने नोट्स को रिवाइज करें। अगर आप पुराने नोट्स को रिवाइज करेंगे, फिर आप जब क्विज अटेंड करेंगे हमारी एप्लीकेशन में, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, वो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगा इन द लॉन्ग टर्म। तो अपने कंटेंट को रिवाइज करते रहिए, अपने जो आप नोट्स बना रहे हैं आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए इन द लॉन्ग रन। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, क्वेश्चंस प्रोवाइड करना। डेली वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप बस पढ़िए, आप बेफिक्र होकर पढ़िए, कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। A good news to all our viewers. Recently, we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of time with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam, and many others detail. Apart from this, you can see here we are covering the whole syllabus here, like data analysis on D3. Then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare, that will help you, or they are the expected questions, they will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel, or if you are new to our channel, then do subscribe, because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or
payment, or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862, and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.